जी ले बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम करने जा रहे हैं। तो सारा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो अब हम यही यूज़ करेंगे आगे जाके क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। तो देखो बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेने जा रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining the 2 points P and Q, whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k in the ratio 2:1. First internally and second externally. We have here, the question says that we have to find the position vector of a point R. And the given ratios are given, and we have to find it from at internally as well as externally, isn't it? So इसको हम फिर सॉल्यूशन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट में क्या होगा फिर हम रिकैप करेंगे। थोड़ा सा आप डायरेक्ट का फार्मूला भी लिख सकते हैं। चलिए जी, इसको हम लेट ए डिनोट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू व्हाट, आई plus 2j minus k and b equal to minus I plus j plus k। ठीक है जी। एंड इसका रेशियो m is to n वो आएगा m equal to 2 n equal to 1। ठीक है बच्चों, दिस आर गिवन। Now we use the formula for the finding the position vector of a point R. Therefore, position vector of a point, position vector you know R, this also denoted by R. What? Tell me the formula. What is the formula? Very good. So the formula is m plus n, mb plus na. This is what the formula we use. Now we will find the position vector of R. We will substitute the value of m, n, a and b. So what is R? Your position vector m. What is the value of m? 2 into what is b? b minus I plus j plus k plus n, and the value of n is 1 into a, I plus 2j minus k whole divided by m plus n, 2 plus 1 3. So this is your what, minus 2i plus 2j plus k plus I plus 2j minus k whole divided by 3. So it will be, now adding we get minus I, means minus 1 by 3 I, this is 4 plus 4 by 3j, now cancel. So this is what your answers. This is the position vector. Okay, now we will go for second part, externally. So the position vector of R, the formula here change. The position vector of R is equal to, so m minus n, mb minus na. Just only difference of signs are there. So same thing we will have, which is equal to m, 2 is 2 into minus I plus j plus k minus 1 I plus 2j minus k whole divided by 2 minus 1. So then what we have,
माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k होल डिवाइड बाय 1। तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा क्या बना, ये बना माइनस 3i, दिस वन कैंसिल, तो नेक्स्ट दिस इज योर 2k प्लस k प्लस 3k, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है पोजीशन वेक्टर एट एक्सटर्नली, ये है इसका आंसर। थैंक यू। अच्छा बच्चों, वी विल गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3. So here I will take question number 1. So what the question says, find the angle between A and B with magnitudes under root 3 and 2 respectively, having A dot B is equal to under root 6. So क्वेश्चन में हमें यही निकलना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। सो यहाँ पे दो कंडीशंस दिया हुआ है, एक उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दूसरा उसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। फ्रॉम दिस कंडीशन वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ओके, नाउ वी गो फॉर सॉल्यूशन। सो अब यहाँ मैग्नीट्यूड दिया है, तो एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, under root 3, and vector magnitude of vector B is 2, and then also the dot product of two vector is also given, that is under root 6. Now with the help of this dot product, we using the formula of dot product, we will find the angles. Okay, now very simple, what is A dot B? So that is nothing, ये क्या है, magnitude of A magnitude of B cos theta equal to under root 6। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना, तो ये आपका यार which is equal to, आप magnitude of A कितना है, under root 3 into magnitude of B कितना है, 2 and cos theta equal to under root of 6. So आपका cos theta क्या बना, so what is cos theta? Cos theta equal to under root 6 divide by, ये दोनों तो नीचे डिवाइड होगा, 2 under root 3, isn't it? तो आपको इसको रेशनलाइज करना चाहिए, तो रेशनलाइज कीजिए, वरना नेक्स्ट सम जाएंगे। फिर आपका थीटा कितना आया, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 6 by 2 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, यही है। और इसका आप रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 3 से कर सकते हैं, तो वो आगे भी ये भी आ सकता है, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपका क्या बना, ये आपका बना रूट अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट कैंसिल 6, ये आपका कितना बना 6 इंटू अंडर रूट 18, तो अंडर रूट 9 इंटू 2, उसका आगे आपका आया, फिर इसका आगे आया कॉस इनवर्स, ये आएगा 9 टू 18, 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 6, ये देखिए 3 1 3, 3 2 6, तो ये आपको फर्दर आपका आया कॉस इनवर्स, ये 2 अंडर रूट 2 बाई 2, ये आया आपका 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है जी, तो इस तरह आप निकल सकते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, तो मैं यहाँ लिख लूँगा, तो वो इस इक्वल टू फर्दर कॉस इनवर्स, कॉस कितना का 1 अंडर रूट 2 होता है, वो आपका होता है कॉस 45 का पाई बाय 4, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इस तरह ये दोनों कैंसिल होगा, दिस इज व्हाट योर वैल्यू एंगल 45, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों।
अच्छा बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर पहला की तरह फर्स्ट की तरह है तो वो सेम है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ये क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर है। तो ये हमने पहले भी किया था, सेम इसी तरह करना है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। तो वेक्टर्स यहाँ 3 दिया हुआ है, उसको यूनिट वेक्टर निकलना है, वो भी मैंने आपको किया था और ये आपको आएगा। एंड आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी वो हमें पता है, तो उसका 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 सेज। सो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a plus b dot a minus b equal to 8 and magnitude of a is equal to 8 times magnitude of b। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी निकलना है। तो वहाँ कंडीशन दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट, तो क्या दिया हुआ है हियर। फर्स्ट दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सेकंड क्या दिया है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। तो फिर हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से हमें निकल जाएगा वेक्टर ए और बी। ठीक है, तो चलिए जी इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आगे क्या होगा, ए और ए ये डॉट प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे। ए डॉट ए प्लस माइनस माइनस आएगा, नेक्स्ट माइनस ए डॉट बी, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट इसी के साथ करना है प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, फिर वो किसके बराबर आया आपका, फिर वो आया आपका ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ये आपको पता है कि ए डॉट ए किसके बराबर होगा, वो आपका ये होगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वो पहले भी मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अब गौर यहाँ पे अब देखना है कि इन दोनों में देखना है, बाकी कुछ नहीं है। माइनस ये क्या आया ए डॉट बी, तो प्लस अब यहाँ पे भी बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। माइनस ये आपका क्या बना, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये इस तरह बना। ठीक है बच्चों, तो फिर ये आपका देखिए यहाँ पे देखिए प्लस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, ये दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, फिर आपका क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ हियर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए so that we can find the value of b। तो बताइए आपका a की जगह क्या लेना है, वेरी गुड, a की जगह अब 8 भी लेना है, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b लेना है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या बनेगा होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह यहाँ देखिए ये तो वही है, ये तो मैं वही लिखूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ b ऐसे रहेंगे एज इट इज। नाउ आगे ये क्या बना, नेक्स्ट इसका स्क्वायर ले लो, ये आएगा 64, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये कितना बना आपका, माइनस हो गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और स्क्वायर इक्वल टू 8। तो आपका फिर
आप देखिए, अब मैं यहाँ से यहाँ ले लूँगा, ठीक है। तो ये क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, वो आपका बनेगा 8 डिवाइड बाय 63। तो जैसे मैं स्क्वायर वहाँ ले लूँगा तो आपका बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 बाय 63। वो आगे आपका क्या बनेगा, 2 अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3 बनेगा, ठीक है। 3 अंडर रूट ऑफ 3 नहीं, 3 अंडर रूट ऑफ 7 बनेगा। 9 7 जा 63, 3 अंडर रूट ऑफ 7, यहाँ पे आप देखिए 3 अंडर रूट ऑफ 7 बनेगा, बिकॉज 9 7 जा 63, तो वहाँ से 3 कॉमन निकल आएगा। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसी तरह वी विल फाइंड इट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए क्या बनेगा, देयरफॉर A is equal to magnitude of vector A is equal to 8 times magnitude of vector B। तो B तो वैसे निकला, तो इसी का 8 टाइम्स कितना हो गया, 16 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 7। दिस आर योर आंसर्स। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13, if A, B and C are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A। so यही हम वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे यहाँ खास ख्याल रखना है, A B C आर यूनिट वेक्टर्स, A B C आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब हमें कंडीशन क्या दिया है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A और B एंड सी का जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर होगा। ये खास ख्याल रखना है, गिवन कंडीशन इज। सो इसके बाद हम कर सकते हैं, और यहाँ पे दूसरे क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, उसी की मदद से वी विल फाइंड दिस। ओके, सो नाउ और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो आप इसी की मदद से हम करेंगे सेकंड, इसको हम फास्ट रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन फास्ट। तो क्या करेंगे, पहले इसी इक्वेशन को मैं ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे पूरा। तो क्या बनेगा, देयरफॉर ए डॉट पूरा को मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसका भी डॉट प्रोडक्ट हो तो 0 बनेगा। तो ये इसका आपका क्या आया, तो ये आपका बना ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपका बना। ठीक है, तो ये देखिए ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस बाकी ये बना ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। जैसे मैंने इस इक्वेशन को ए से मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, तो इसी तरह हम इसी इक्वेशन फर्स्ट को बी से भी हम डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इसी से सी से भी लेना है। तो क्या आएगा, ये आपका सेकंड पार्ट आया। तो इसको हम सेकंड आगे थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, आगे अगर कुछ इसको थोड़ा सा हम कर भी सकते हैं, तो इसको एक बार और आगे कर लो। तो ये क्या बनेगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का हो स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है आपका 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस फिर आपका रहेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो आगे बनेगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -1, ये आपका बनेगा थर्ड सेकंड इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट सेम। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, अब बी से करना है, तो वो आएगा क्या आएगा, बी डॉट ए बी डॉट बी, फिर वही आएगा, फिर ये आपका बनेगा बी डॉट ए प्लस फिर आएगा बी डॉट सी, ये आपका बनेगा वही -1, यही बनेगा। तो इसको भी आगे ये ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो ये वो सेम ही है। चलिए जी फिलहाल मैं इसको थर्ड रखूँगा। सिमिलरली नेक्स्ट
अगर हम में से सी से प्रोडक्ट ले लूँगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आप सी डॉट ए प्लस ये बनेगा फिर सी डॉट बी इज इक्वल टू ओ वाई बनेगा सी ओ वन, यहाँ पे आएगा -1, ये आएगा आपका फोर्थ। अब हम पूरा सेकंड थर्ड फोर्थ को एडिंग करेंगे तो आपको क्या बन गया, तो बाय एडिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं, एडिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट व्हाट वी हैव। तो देखिए यहाँ देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, तो इस तरह आएगा। तो सब प्लस करेंगे तो ट्वाइस ए डॉट बी आए, इसी तरह ट्वाइस बी डॉट सी, इसी तरह ट्वाइस, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं इस तरह, तो ट्वाइस सी डॉट ए, वो आपका बना, ये सम करेंगे तो ये कितना बना -3। तो लास्ट पे दिस इज योर आंसर, तो ये आपका क्या बना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2, दिस इज योर वैल्यू, ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ आइदर वेक्टर a is equal to 0 और b is equal to 0 then a dot b is equal to 0। so इसमें ये दिया है कि a dot b is equal to 0 if a is equal to 0 और b is equal to 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, but the converse is need not be true, और उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, तो उसको आप जस्टिफाई करना है, प्रूव करके देना है कि वो कैसे नहीं है ट्रू, कन्वर्स वाई कन्वर्स नॉट ट्रू। आप कोई एग्जाम्पल ले लो, लेट ए इज इक्वल टू आई -3j प्लस के, ठीक है बच्चों। और इसी तरह बी वेक्टर ले लो, i प्लस 3j प्लस 5k वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ पे 2 ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ये हमने क्या लिया है, ये हमने वेक्टर लिया है। देखिए हमने अपनी तरफ से वी विल टेक एन एग्जांपल, देखिए ए ये लिया है, बी ये लिया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ए डॉट बी 0 होगा जब अगर ये और ये 0 होगा। तो मैं ऐसा ले रहा हूँ, ये दोनों 0 नहीं होगा, तब भी हम ए डॉट बी 0 निकल सकते हैं। तो देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, फिर इसका मैग्नीट्यूड आया, वो क्या आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 4 5 6, ये 6 आया। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो क्या आया आपका 1 स्क्वायर प्लस 9 10 25 35 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों 0 नहीं है। आप फिर हम बट अब देखिए ए डॉट बी निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, i -2j प्लस के डॉट i प्लस 3j प्लस 5k। वो देखिए वो किसके बराबर आया, आप यहाँ देखिए i 1, दिस इज -6, दिस इज +5, वो आपका लास्ट पे क्या बना 0। तो ये यहाँ से मैंने कंक्लूजन फाइंड आउट किया है कि आप कंक्लूजन क्या है हमारा, कि ज़रूरी नहीं है कि ए और बी दोनों या दोनों में से एक 0 वेक्टर आना चाहिए। दोनों भी 0 वेक्टर नहीं होगा तब भी ए डॉट बी 0 हो सकता है। तो ये मैंने कन्वर्स प्रूफ करके दे दिया है, बाकी हम कल लेने जा रहे हैं। तो अच्छा बच्चों, थैंक यू।